and it will assign those values to these two data members. अब यूजर भी एंटर कर सकता है या फिर जैसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यूज पास करके असाइन करते हैं वैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं. नाउ एंड द थर्ड वन इज प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन. ठीक है, उसका नाम क्या है? डिस्प्ले एरिया टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. And once you do this, what you have to do, you have to derive two classes, triangle and rectangle. And with the help of these two classes, we have to execute these functions. We have to perform different operations, wherein we will calculate area of triangle, area of rectangle. Okay. Before proceeding to this problem statement, can anyone tell me what is uh, virtual member function or virtual function? We are talking about pure virtual function. Yes. Can anyone? Let it be wrong, no problem. Whatever you have learned. आपका हुआ है ना ये क्लास में सब? So yes, no. Yes, sir. Okay. So can anyone tell me what you understood? Forget about the question. आपको क्या क्या समझा है? ये वर्चुअल नाम का जो भी है, ये क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? Sir, virtual functions are functions which are defined in the base class and then overloaded in derived classes. Okay. Overrided. ठीक है. Okay, there are two things, overloading and overriding. Can anyone tell me the difference between these two, overriding and overloading? Yes, Function name and arguments are same in overriding. overriding. And what about overloading? Arguments are different. Arguments are different. So basically, whenever we want to perform, say, addition of few numbers. So in some cases, we may have addition. We have to perform addition of two numbers, and in some cases, it might be the case that we have to perform addition of multiple numbers. For example, suppose this is your main function. So I have to perform addition of two numbers. I have multiple variables with me. I, J, K. Similarly, float A, B, A, B, C. And now I suppose I have accepted all the values. No? Code for accepting values. And after that, I'm performing addition. So add, and here I want to perform addition of two integer numbers. For that, say I and j. I will pass those arguments. अब function definition में क्या होता है? We write void add, and now we want to perform addition of two numbers. So here integer x comma integer y. And इथे आपण we will perform the addition. Do you agree with me? Hmm? So here I'm passing only two parameters. So my function definition accepts only two values. So this function can perform addition of two integer numbers. But what if I want to perform addition of three numbers? Then in that case, what I have to do is I have to write one more function. Yeah. Here add 2. Okay, this is add 3.
प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे मुझे अगर सपोज दो इंटीजर का है, वैसे ही दो फ्लोट का करना है, एक फ्लोट और एक रियल का करना है, या फिर डबल का करना है, ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स है या फिर अलग अलग नंबर से, तो ऐसे कितने फंक्शंस में याद रखूंगा? क्योंकि ऐड टू इज फॉर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, ऐड टू underscore something more because I want to perform one integer and one float. In that case, this cannot be used. This function cannot be used. ठीक है, जो डेटा टाइप यहाँ पे है वही हमें पास करना पड़ता है। अगर आपने कुछ अलग किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल जनरेट एरर। ठीक है, तो इसके इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, C++ has provided us a facility of function overloading. Function overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? सेम फंक्शन नेम, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, सेम फंक्शन नेम कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस provided they have different parameters. So I have to perform addition, sometimes addition of 2, addition of 3. Yes, then in that case I can use same name for that function. But the thing is, you must have either the number of parameters different or the sequence should be different. यानी मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, float x, float y. Again, two parameters, but this time we have different parameters, two float values, one integer. Similarly, we can write like this also, wherein first variable is integer, second variable is float. Similarly, float int. Likewise, I can write n number of functions with same name. ठीक है, with same name, but it perform different operations. For example, यहाँ पे two integers addition, two floats addition, one integer, one floats addition, like this. This is what function overloading. और function overriding क्या होता है? Overriding. So in function overriding, suppose we have a class base. And in that we have the function display. Then I have class derived, which is inherited from class base. Am I audible? Yes, sir. Here also we are going to write same function name, void display. So this means I'm using same function name. ठीक है, but here what I'm so when I call a function, display function with derived class object, this function will get called because it is overriding. ओवरराइड कर रहा है। जैसे सपोज मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, यू आर हियर इन कॉलेज एंड आई आस्क वन ऑफ यू टू गो टू जेरोक्स सेंटर एंड ब्रिंग अ पेन। इन बिटवीन सपोज अगर एचओडी मिल गया और एचओडी ने बोला कि डोंट गो एनीवेयर, जस्ट गो एंड सिट इन योर क्लास, तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था वो एचओडी के इंस्ट्रक्शन से ओवरराइड हो जाता है एंड यू कम बैक टू द क्लास। सिमिलरली overriding, whatever here it is written, you can override it, you can change that definition here. So this is what is called as function overriding. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will come to the virtual function. ये तो हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग जो हमने देखा था। अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? सपोज जो क्लास में ही आपने एग्जांपल देखा होगा, क्लास शेप, पता है ना सबको? हाँ ना? Yes, sir.
तो कोई बता सकता Yes, है क्या क्या आपने स्टडी किया था, वो क्या था? जैसे यहाँ पे होता है क्लास शेप, तो व्हेन यू से क्लास शेप, ठीक है, इट कैन बी एनी शेप. So I cannot define member variables here. Suppose देखिए क्या यहाँ पे shape का. Okay. Here we will do it here. Suppose when I say shape. अब मैं जब shape बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या कि चलो float radius. No, because I don't know what shape it will be. Or can I write like this, length into breadth? No, I cannot write that also. Height and base, H and B. No, because I don't know ये ट्रायंगल है भी या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्लास शेप. सो मैक्सिमम बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स. क्यों? इंस्टेड ऑफ एच बी आर एल एल बी आर ऐसे लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा यहाँ पे वेरिएबल 1 and variable 2, two member variables. Why? Because I don't know what type of shape it will be. Suppose shape. Now इस क्लास से मैं शेप यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ और शेप है ट्रायंगल. ठीक है, अब ट्रायंगल में क्या क्या जरूरी होता है? सपोज मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. हेलो, Base and height. नेक्स्ट टाइम अगर ये डिले आया, ठीक है, और किसी ने अगर बोला नहीं या फिर सेम पर्सन अगर बार बार बात कर रहा है, तो अगेन वी विल स्टॉप दिस. आई विल डिक्लेयर दिस टू असाइनमेंट्स एज डन एंड यू स्टार्ट सबमिटिंग. एम आई क्लियर? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. So here we have suppose void calculate area, and I have declared two variable. अब यहाँ पे var1 var2 क्यों दिया है? क्योंकि मुझे पता नहीं है आगे का कौन सा शेप हो सकता है. क्लास सर्कल, वहां पे भी हम पब्लिक, yes it is also shape, so that's why it is inherited from shape. Now सर्कल में क्या क्या जरूरी होता है? Radius. Radius. Yes, Radius. so I need only one variable, only one variable for storing radius. Similarly, when we talk about angle, मुझे क्या क्या जरूरी है in order to calculate area? Two variables. Two variables, one for Height and the Height base. and second base. yes, two variables, ठीक है, for height and base. Similarly, suppose one more shape is there. Rectangle. How many variables? Two. Two. And breadth. One for Length and breadth. Length and breadth. करेक्ट. ठीक है, अब यानी क्या है, कभी कभी हमें एक ही वेरिएबल की जरूरत है, कभी कभी हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है, और यहाँ पे भी दो. सो मैक्सिमम इफ आई एम कंसिडरिंग ओनली दीज थ्री शेप्स, स्ट्रिक्टली मैं सिर्फ ये तीन ही शेप कंसिडर कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मैक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स नीडेड विल बी 2. तो हियर आई विल डिक्लेयर दोज एज अ वेरिएबल एंड वेरिएबल 2. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये है, टू डेटा मेंबर्स ऑफ टाइप डबल. ठीक है, तो मैंने फ्लोट लिया है, ये समझ में आ गया. अब मेंबर फंक्शन टू गेट डेटा, member function to get that data. So here void get
डेटा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इधर यू कैन एक्सेप्ट वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल सॉरी इन var1 इन var2, दो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट इज फॉर गेट डेटा, दैट्स इट। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज अ प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले एरिया, ठीक है। अब प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन जो होता है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, void show नो डेफिनेशन, ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड उसके आगे लगाएंगे इज इक्वल्स टू 0। because it has no definition। अब यहाँ पे गेट डेटा हमने लिखा है ऑलरेडी, ठीक है, और ये वर्चुअल मेंबर फंक्शन है। वर्चुअल मेंबर फंक्शन यानी क्या होता है, जिसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज वी डोंट राइट डेफिनेशन, दैट्स व्हाई वी असाइन 0। दिस डेफिनेशन कैन बी रिटर्न इन सबसिक्वेंट क्लासेस, जहाँ पे ये इनहेरिट हो रहा है वहां पे हम वो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एरिया फॉर ट्राइंगल, क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, यस ट्राइंगल आउट area of triangle is 0.5 multiplied by var1 comma var2। अब var1 var2 के लिए वैल्यूज हमने एक्सेप्ट की है क्या, नहीं, वो तो यहाँ पे है ना। तो अब मेन में हम क्या लिखेंगे, बाकी का हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, पहले एक ही क्लास का देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटीजर मेन ट्राइंगल P। Now I want to first of all accept the values। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या फंक्शन है, Get data. Get data. ठीक है, वो यहाँ पे है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो वो क्या करेगा, यही वाली डेफिनेशन वो यूज करेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे तो सी आउट स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ सी इन है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कुछ एंटर करना है, इसीलिए मैं मेन में लिखता हूँ सी आउट एंटर, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड ट्रायंगल, एंटर एच एंड बी, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, तो एक्सेप्ट करने के लिए हम गेट डेटा कॉल करते हैं, टी डॉट ठीक है, और उसके बाद एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए टी डॉट कैलकुलेट एरिया। नाउ इफ यू सी मेंबर, वर्चुअल मेंबर फंक्शन क्या होता है, जिसका डेफिनेशन हम वहां पे डिफाइन करते ही नहीं है, तो जब हम उसका डिफाइन नहीं करते डेफिनेशन, तो दिस क्लास बिकम्स द क्लास विच कंटेन्स वर्चुअल फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो कुछ तो टेम्पलेट है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर सकते, so we cannot create object of this class।
जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये समझ में आ गया ना? ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. ठीक है. So two variables, because I don't know which shape it will be, so I cannot say it is L and B only or L or H and B. ठीक है, तो इसीलिए मैंने var1 var2 लिख दिया, एक्सेप्ट किया है. कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा ये अलग अलग है. रेडियस के लिए अगर सर्कल है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है. अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला अलग है. तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज है, इसीलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम नहीं लिख रहे. और जो क्लास हमने डिक्लेयर किया है उसमें हमें पता है कि ओके ये तो ट्रायंगल क्लास है, तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, वो हम यहाँ पे करेंगे. सर क्लास के ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन. थैंक यू. var1 okay. Sir, using namespace. Okay, so enter H and B. So this statement is executed and after this we are calling get data. Get data हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है ट्रायंगल में. Get data हम किसका यूज कर रहे हैं? शेप क्लास का. तो सपोज 10 and 20. अब उसके बाद क्या होता है? वंस यू एक्सेप्ट इट इज कैलकुलेट एरिया, ये फंक्शन कॉल होता है और वो var1 var2 जो है शेप से वही यूज करके, क्योंकि उसमें वैल्यूज है, वो एरिया डिस्प्ले कर रहा है. तो हियर वी कैन से दैट वी हैव ओके, इसका डेफिनेशन हमने इंप्लीमेंट किया. वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस फंक्शन हियर. इंप्लीमेंट यानी प्रोग्राम लिखना, फंक्शन लिखना, डेफिनेशन लिखना. So here we can say that we have implemented virtual function in class triangle. Virtual function is declared in class shape. फिर से virtual function is declared in class shape. That's why this class shape is abstract class. What do you mean by abstract class? We cannot create object of that class. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉसिबल नहीं है सर. Cannot declare variable s to be of abstract type shape. So shape is abstract class. So उसका वेरिएबल, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will move to the next part. अब हम इसी में एक ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सर्कल भी ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था ना. क्लास ट्रायंगल की तरह ही हम क्लास शेप भी लिखेंगे इसमें. अब इस बार हम गेट डेटा यहां से यूज कर रहे थे क्योंकि वी नीड टू एक्सेप्ट 2 वैल्यूज, है ना. इंस्टेड ऑफ दैट अब
in case of circle, am I supposed to accept two values? No, sir. No, only No, sir. one. So if here, if I do this, circle C, ठीक है, enter radius and C dot get data, C dot calculate area. वो कैलकुलेट एरिया लिख देते हैं एक बार से. Area of circle is array Pi r square. अरे फॉर्मूला सा 3.1 3.142. Var 1 into var 1. var1 into var1 because it is the same value. बरोबर. पण आता ज्यावेळेस मी गेट डेटा करणार आहे तर काय होते ते बघू आपण. Enter radius say 10. Still it is waiting because जब हम गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कौन सा कॉल हो रहा है, जो शेप में लिखा है वही कॉल हो रहा है. अदरवाइज वी डोंट हैव एनी डेफिनेशन इन सर्कल इटसेल्फ, इसलिए यही फंक्शन कॉल हो रहा है. तो अब दिक्कत यह है कि हमें और एक वैल्यू देनी पड़ रही है. एरिया ऑफ सर्कल इज 314 because var1 is 10, 10 into 10 100, 100 into 3.14 is 340. तो ये सही आंसर दे रहा है, बट अननेसेसरली आई हैव टू एक्सेप्ट, आई हैव टू एंटर वन मोर वैल्यू. यूजर हैज टू एंटर वन मोर वैल्यू. सही है ना. तो ये कैसे निकालेंगे हम, मुझे एक वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए. इन दैट केस आई विल रीराइट दिस फंक्शन, आई विल ओवरराइड दिस फंक्शन इन क्लास सर्कल. तो मैं क्लास सर्कल में क्या करता हूँ, नहीं मुझे वो इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए आनंद सर का, मुझे एचओडी का इंस्ट्रक्शन चाहिए. तो एचओडी का इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे void get data गेट डेटा एंटर रेडियस var1 एक ही वैल्यू ले लो बस. यस, समझ में आ रहा है. अब हमने यहाँ पे क्या किया है, गेट डेटा ओवरराइड किया है, यानी जो बेस का इंस्ट्रक्शन था वो हमें नहीं यूज करना है. क्यों? क्योंकि मेरा क्लास का शेप अलग है, मेरा शेप अलग है, इसीलिए मैं एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे फिर से खुद का गेट डेटा लिखता हूँ. और अगर नहीं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने नहीं लिखा है गेट डेटा, तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, बेस वाला ही यूज हो रहा है. सबको समझ में आ रहा है ये? येस सर, येस सर. दोघं जण, बाकीचे काही झोपलेत का? ठीक है, देन वी विल स्टॉप हियर ओनली. एंड ये वर्चुअल फंक्शन का, ठीक है, और कौन सा है वो दूसरा, ये भी कर लो और ये भी करना है. दोनों सबमिट कर दो. विल स्टॉप हियर ओनली. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर ते ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग मध्ये सीइन आणि सी आउटचे ऑपरेटर्स पण ओव्हरलोड करायचे आहेत का हो. कॉम्प्लेक्स नंबरच्या हो. कोड मध्ये? तुम्हाला जमत नसेल तर मला तसं सांगा, मग मी तेही सांगेल. इन्सर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रॅक्शन ऑपरेटर ओव्हरलोड करायचे त्या केसमध्ये.